This is our interior of Earth and it's been divided into crust, mantle and core. और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट है CMGL। तो क्रोनार्ड, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, रेपेटे, न्यूटनबर्ग, लेहमैन, तो ये जो है ये डिवाइड करता है हमारा अपर क्रस्ट और मेंटल लोअर क्रस्ट को, फिर अपर लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, दिस वन, और इस तरह ये डिवीजन होता है। तो ये जो हमारा है क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये जो बेल्ट है एस्ट्रोनोस्फीयर, यहीं पे मैग्मा जो होता है वो लाई करता है, जिससे वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनो कहाँ होता है? जहाँ पे जो प्लेट होते हैं वो जहाँ पे कोलाइड करते हैं, तो वहीं पे वोल्केनो इरप्ट होने का मैक्सिमम चांसेस होता है। सो यहाँ देखिए, a volcano is a place where gases, acids or molten rock material, lava, that is lava, escape to the ground। ये जैसे है यहाँ से ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। A volcano is called an active volcano if a material mentioned are being released or have been released out in the recent past। The layer between below the solid crust is mantle। अब यहाँ देखिए, the material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic debris, volcanic bomb, ashes, dust and gases such as nitrogen compounds, sulfur compound and minor amount of chlorine, hydrogen and argon। तो यहाँ हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 2024 का पेपर है। देखिए कैसे डायरेक्टली उसी एनसीईआरटी के चैप्टर से सारे लाइन को पिकअप किया गया है, और इसका आंसर होगा ऑल द फोर। सो इसका आंसर ऑल फोर है। हम लोग टाइप्स ऑफ वोल्केनो देखते हैं। सबसे पहले आता है सील्ड वोल्केनो। सील्ड मतलब जो आप कैप्टन अमेरिका का सील्ड देखते हैं, तो उसी तरह सील्ड समझ लीजिए, सील्ड है। So, barring the basalt flow, the sealed volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth। तो बसाल्ट जो मैग्मा, बसाल्ट जो लंबा जो फ्लैट होता है उसको छोड़ने के बाद ये सबसे बड़ा है। द हवाईयन वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस। हवाईयन आपका कहाँ है? यूएसए में, एक्सटेंडेड टेरिटरी है यूएसए का, वो हो गया। एग्जाम्पल, द वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। और यही बसाल्ट जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इसी से बना हुआ है, this basalt lava। For this reason, these volcanoes are not steep. They become explosive if somehow water gets into the vent। पानी घुसने से होता। Otherwise, they are characterized by low explosibility। The upcoming lava moves in the form of fountain and throws out cone at the top of the vent and develop into a cinder cone। Now, composite volcano पे आते हैं। The volcano are characterized by eruption of cooler and more viscous lava। यहाँ देखिए more viscous, यहाँ पे आएगा more viscous lava than basalt। These volcanoes often result in explosive eruption along with lava. Large quantity of pyroclastic material and ashes find their way to the ground। This material accumulates in the vicinity of vent opening, leading to formation of layers, and this makes the mounts appear more composite volcano। Now caldera पे आते हैं। These are the most explosive earth volcano। They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। यानी कि ये नहीं जैसे फूटना, कुछ ब्रस्ट करना, और वहीं पे इनका जो टुकड़ा होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो होता है वहीं गिर जाता है। So they collapse depression। These explosive indicate that the magma chamber supplying lava is not only huge but it is also close vicinity में tightly packed है। Now हम लोग आते हैं flood basalt province पे। So these volcano output highly fluid lava that flows for long distance। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू इसका एग्जांपल है। Some parts of the world are covered by thousands of square kilometer thick basalt lava। They can be series of flows with some flows attaining thickness more than 50 meter। So the individual flow may extend for hundreds of kilometers। The Deccan traps from the India presently covering most of the, देखिए यहाँ पे आगे चुके हम लोग डेक्कन ट्रैप्स पे आ चुके हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू है और मच larger flood basalt province। It is believed that initially that trap formation covered a much larger area than the present। तो ये जो हमारा जो हुआ था एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे एक रियूनियन आइलैंड है जो कि अभी फ्रांस का टेरिटरी है। तो यहाँ पे एक आपका क्या था, मैग्मा प्लूम। और मैग्मा प्लूम क्या होता है? एक तरह का वोल्केनो ही होता है जो कॉन्स्टेंटली इरप्ट होते रहता है। और यहाँ पे जब हमारा लैंड इंडिया का जो कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट जब गोंडवाना से अलग हो रहा था, तो इस जगह पे जब था तो उसी समय यहाँ पे ये
फॉर्म होता है थ्रू दिस मैग्मा प्लूम ऑफ यूनियन आइलैंड। तो उसी की वजह से हमारा जो अभी अभी का जो हम लोग देखेंगे ये जो डेक्कन प्रोविंस है महाराष्ट्र फ्लड उसी की वजह से आता है। नाउ हम लोग आते हैं मिड ओशनिक रीज वोल्केनो। दो दिस वोल्केनो ऑकर इन ओशन ओशनिक रीजन, दे आर a system of mid ocean ridges, ठीक है, and more than 70,000 किलोमीटर long that stretches through the ocean basin. The central portion of this ridge experience a frequent eruption. We shall be discussing this detail next chapter. तो अलग अब यहाँ समझते हैं, सपोज ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका अंटार्कटिका है, तो इसमें आपको एक मिलता है मिड ओशनिक रीज, और यहाँ से पता चलता है कि जब भी यहाँ से जब लावा फॉर्मेशन होता है तो ये आपको यहाँ जो आइलैंड फॉर्म हुआ वो अब स्लाइड होते यहाँ आ चुका है, फिर स्लाइड होते यहाँ पोजीशन आ चुका है, फिर यहाँ पोजीशन आ चुका है। इससे क्या पता चला कि ये कॉन्स्टेंटली ये आपको ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रहा है और यहीं पे यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है और कॉन्स्टेंटली फॉर्मेशन हो रहा है अर्थ क्रस्ट का। तो ये हमारा मिड ओशनिक रीज वोल्केनोस। तो हम लोग वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पे आते हैं। एक है इंट्रूसिव जो कि अंदर होता है, और एक है एक्सट्रूसिव जो हम लोग बाहर देखते हैं, जो पायरोक्लास्टिक और कैल्डेरा ये जो फॉर्मेशन ये एक्सट्रूसिव है। लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक eruption cooling develops into igneous rock। तो कौन सा रॉक मिलता है यहाँ पे? igneous rock। This cooling may take place either on the reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion. Depending on the location of cooling of the lava, igneous rock are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust। तो समझ गए प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है? कूलिंग इन द क्रस्ट एंड वोल्केनो कूलिंग एट द सरफेस। तो जो अंदर हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक। लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लोग आगे देखेंगे, ये है हमारा मेन इमेज और इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ हमारे पास बैथोलिथ, ये देखिए बैथोलिथ, ये क्या? लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ कूल्ड लावा। ये देखिए अब ये जो आपका जो है वर्टिकल में इसे हम डाइक बोलते हैं, डाइक, और जो हॉरिजॉन्टल है इसे सील्स बोलते हैं। और ये कि सॉसर शेप ऐसे जो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ एक और होता है लैपोलिथ, तो वो अभी इस फिगर में शो नहीं हो रहा है, पर वहां कॉनकेव मिरर जैसा ये शेप लेता है, लेंस जैसा। और ऊपर देखिए कंपोजिट वोल्केनो है, सिंडर कोन है, एसिस कोन विद वोल्केनिक डोम है, लावा मेशा, लावा प्लेट्यू, वोल्केनिक विथ रेडिएटिंग डेज, कैल्डेरा कोन ऑन फ्लोर। तो ये हमारा वोल्केनिक। यहाँ समझते हैं बैथोलिथ क्या है। सबसे पहले सेवरल, ये देखिए कवर लार्ज एरिया, लार्ज डोम्स, ग्रेनिटिक बॉडीज, कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। तो यहाँ कर्नाटका प्लेट्यू जो है लैकोलिथ्स में आता है, एक्सफोलिएटेड एग्जांपल ऑफ लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स। और ये कॉन्ड्यूटल है, पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो लार्ज डोम शेप्ड। अब यहाँ देखिए लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सील्स। So when lava moves upward, a portion of same may tend to move in a horizontal direction। तो जो हमारा horizontal direction में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Seals। It may get rested in different forms। क्या देखिए इसमें saucer shape, concave to the sky body is called लैपोलिथ। तो लैपो क्या है? लैपो ये concave to sky body, that is saucer shape। A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of syncline and top of anticline found in igneous country। तो ये आपका है such wavy material have a definite conduit to source beneath it form magma chamber। These are called facholiths। Now the near horizontal bodies of the intrusive rocks are called seal or seeds depending on the thickness of the material। The thinner ones are called seeds while the thicker ones are called seals। अब हम लोग आते हैं डाइक। तो डाइक क्या है हमारा? ये है हॉरिजॉन्टल। Lava mixed way through cracks and fissures develop in land। It solidifies almost perpendicular to the ground। It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure। Such structures are called dikes। Most commonly found intrusive forms in western Maharashtra area।
ये कहाँ है आपका, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया, कंसिडर फील्ड ऑफ इरप्शन ऑफ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो ये डाइक के का रीजन है। और सील्स जो है वो आता है आपका कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, ये आपका लैकोलिथ्स। तो ये सबको हमें बस समझ के रखना है।